Okay, perfect then. So anyone who wants to go first for the yesterday's recapitulation class, was yesterday whatever we discussed. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Acha, we have Yes, sir. candidate. Smriti is there. Ayush is there. So even I'm there. You want to go, Smriti? Yes, sir. Okay, Ayush, I think so. We will be proceeding with you from tomorrow. I will keep your name with me. Okay. Chalo, Smriti, come on, let's get started. Thank you, sir. Sir, we have learned about the basics of load balancer. So first we have identified that how server or virtual machine configured to wave server. So we have taken an example as Flipkart. So we can hit the IP or domain also, but for better readability, so we take domain to hit. Then we have learned about how to configure a web server in Windows Machine. So we have made two servers. First of all, we have made a resource group. Then we have created virtual network, and then we have created subnets, and finally we have created the virtual machines. And we had moved to the resources to check everything. Then we copied the IP to connect through the RDP. Then we have configured it as web server, and using this IP we have created a website, so we can hit that particular IP, we can see the websites we have made. So basically our job is to deploy it and to give it proper IP, and this IP will be mapped to the domain men. Then again we have created another virtual machine. Also this have a public IP, and again we configure it to a web server. So we have a basic knowledge about how this particular server is converted to web server, and how we got the IP and allocated IP by the cloud service provider, and how do we put the contents in the web server, and finally we see how it render in our browser. Then we have learned about that when and which virtual machine we have to hit particularly. So this have a solution which is a networking theory called load balancer. So basically how load balancer work. So when we hit to the load balancer, so as we know this is a networking device and it has its own public IP. So we can provide the users this load balancer IP. So load balancer work is to send the request given by the users, and this load balancer helps to distribute to the server or which load balancer serve which particular VM. Virtual machines or servers. So basically a load balancer is a networking device or service that evenly distributes incoming network traffic across multiple servers or resources, and its purpose is to optimize resource utilization and improve responsiveness and ensure high availability for the application or services. So basically load balancer are two types, that is basic load balancer and standard load balancer. So basic load balancer is available on free of cost, but in standard load balancer it have charges and security groups is enabled. And in basic load balancer we have to allocate the IP of the VMs, and this will distribute. So this is a basic load balancer we have studied about, and also it has internal categorization, that is public load balancer and internal load balancer. When the load balancer is available in public to the users to access the virtual machines, basically this is publicly available to access any server. So this is known as public load balancer. As we know, this virtual machines are basically web server, and this web server is connected to any other server like DB server. So there will be multiple DB servers. So this server also have a load balancer that is internally connected. Now this is called internal load balancer. In the load balancer, we can configure the servers, but to configure this, we have a requirement that is VM should be a single availability set. Then we created our load balancer. So that's it.
Thank you. Perfect. So theoretically, it's all good from my end. What was the name? I forgot just. That's Smriti. Oh yeah. Hi. Okay. Very good, Smriti. It's a very good theoretical explanation. I hope that you have done the practicals as well. So for the better understandability of these topics of the load balances. Okay. So Thank you, now sir. let's get started. Now again, we will be talking about today. The topic would be standard load balancer. But before that, let's try to make a visual representation that what we did yesterday. So just to get a clear idea. So basically, for example, these were our VMs. For example, yesterday we took two VMs. So these are where servers. So basically, they were inside our same AV set. This AV set is basically the availability set. So these are the VMs. These are the VMs, and here was our load balancer. Here was our load balancer. Load balancer. Okay. So what used to happen is that we as a client means we are a client for a particular service. For example, Flipkart.com, Google.com. We are a service. We as a client, we hit the load balancers IP. So there might be multiple hits. There might be users from across the world that will be hitting the load balancers. So once this client means client request. Once this client request is there on the load balancer, the load balancers internally redistributes the traffic in such a way that our whole resource group is optimally used. The resource group utilization is optimal. We are paying a lot for this infrastructure, so we have to be assured that all our resources are being used perfectly. So do you know during the Big Billion Day sale, what this Flipkart do? Flipkart वो करता है क्या ना, वो ना अपने जो VMs है ना, ये VMs बढ़ा देते हैं. अपने लोड बैलेंसर्स का जो कैपेबिलिटी रहता है, अभी तो हमने बेसिक लोड बैलेंसर है, वो जो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर यूज करते हैं ना, दे इंक्रीज द इनहांस्ड सिक्योरिटी, दे ऐड मोर सिक्योरिटी रूल्स. वो लोड बैलेंसर को और भी ज्यादा कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं, एंड इन रिटर्न ये VMs को दे स्केल अप. दे स्केल अप दी VMs. ठीक है. तो बिग बिलियन डे में होता क्या है ना, कि तुम लोग ने देखा होगा कि रात 12 बजे जैसे बिग बिलियन डे स्टार्ट होता है, द सर्वर गेट्स स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट. तो वो बैकएंड पे वो सब चीज रेडी करके रखते हैं. वो ऑलरेडी VMs, अगर वो पहले 1000 VMs अपने पास रखे होंगे, तो हो सकता है कि पर्टिकुलरली फॉर बिग बिलियन डे वो 10,000 और वर्चुअल मशीन्स अपने पास रखे होंगे, 10,000 सर्वर्स अपने पास रखे होंगे. बट इवन दो इतना ट्रैफिक रहता है कि वो हमारा लोड बैलेंसर वहां पे वो हमारे सर्वर्स रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, बिकॉज ऑफ द हाई क्लाइंट रिक्वेस्ट. ठीक है. तो अब ये मेरा लोड बैलेंसर है. ठीक है. लोड बैलेंसर कल हमने पढ़ा था, हमने बेसिक लोड बैलेंसर पढ़ा था. दीज आर आवर VMs, और ये हमारे तो फिर एक लोड बैलेंसर्स कैन फर्दर बी कैटेगराइज्ड इनटू, एक होता है बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड. इसके बारे में पढ़ेंगे. Sorry, standard load balancer. Standard load balancer, and this is the basic load balancer. ठीक है. अब जैसे स्मृति ने भी बताया कि we even talked about some public and internal load balancers. So these load balancers can further be distinguished. For example, these are the VMs. So in return, these VMs are just acting as a web server. ठीक है. इसके पास बस कंटेंट अपने पास रखा हुआ है जो हम अपने फ्रंट एंड में दिखाना चाहते हैं. ठीक है. लेकिन ये वेब सर्वर हो सकता है ना कि बैकएंड में कोई डेटाबेस सर्वर को भी कॉल कर रहे होंगे. कहीं मेरा SQL सर्वर होगा, SQL मतलब समझ रहे हो, डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL सर्वर होगा. हो सकता है NoSQL सर्वर हो. अभी मार्केट में दो तरह के डेटाबेस काफी चल रहे हैं, द रिलेशनल डेटाबेस एंड द नो रिलेशनल डेटाबेस, दैट इज और MongoDB, Firebase. ये सब चीज का जब तुम नाम सुनोगे ना, ये these are just terms. MongoDB, ये सब जो है ना, ये सब चीज तुम लोग पढ़ोगे. मतलब ये सब चीज अगर जान लोगे तो then it's well and good, but you need to know. I will try on some of the class कि एटलीस्ट मैं तुम लोग को सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि यू कैन चूज द बेस्ट टेक्नोलॉजी आउट ऑफ इट, एंड देन कैन कंबाइन विथ योर क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी.
ठीक है, चलो तो दीज आर योर वेब सर्वर्स। सो ये वेब सर्वर्स इन रिटर्न ये भी तो कोई डेटाबेस सर्वर को हिट कर रहे होंगे। हमारा मान लो हमने 4 डेटाबेस सर्वर भी बना कर रखा है, ठीक है। अब कौन से VM किस डेटाबेस सर्वर को हिट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ भी एक लोड बैलेंसर रहता है, ठीक है। ये इस लोड बैलेंसर को हिट करेंगे, ठीक है। अब ये लोड बैलेंसर अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करके ये हमारे सारे VMs को ये सारे DB सर्वर को लेट कॉल इट एज ए DB सर्वर। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा DB सर्वर ही हो सकता है कुछ और सर्वर हो कि जो उसको वो चेक कर रहा हो, DB सर्वर, ठीक है। ठीक है, सो दिस लोड बैलेंसर इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर मी, ठीक है। तो ये पब्लिकली अवेलेबल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर। और इस लोड बैलेंसर को क्या बोलते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर। परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है, इंटरनल लोड बैलेंसर क्या होता है, ये AV सेट क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या है, बेसिक लोड बैलेंसर और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिजाइन फ्लो ऑफ अ लोड बैलेंसर, ठीक है। अब चलो मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक जनरल क्वेश्चन। चलो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चलते हैं, कुछ विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लिपकार्ट वेबसाइट, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को आज बताता हूँ कि जो भी वेबसाइट डिजाइन होते हैं ना, वो ना जो उसके डिजाइन पैटर्न होते हैं वो 2 तरीका से बनते हैं। या तो हम माइक्रो सर्विसेज डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं या मोनोलिथिक यूज कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज अभी ज्यादा यूज पे हो रहा है। माइक्रो सर्विसेज करता क्या है ना, कि आप एक इंडिविजुअल फीचर के लिए एक माइक्रो सर्विस बना के रखो। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में क्या क्या फीचर्स हैं, हम अगर लिस्ट आउट करने जाए, सो आई हैव अकाउंट लॉगिन फीचर, आई हैव कार्ट फीचर, आई हैव बिकम अ सेलर फीचर, आई हैव प्रोडक्ट बाय अ प्रोडक्ट फीचर, ठीक है। तो ये सारे एक एक माइक्रो सर्विसेज हैं। और हो सकता है बैकएंड में कि ये माइक्रो सर्विसेज के लिए पर्टिकुलर सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर होगा कि ये जो सर्वर है ना, ये सिर्फ अकाउंट साइनअप देखेगा, ये सर्वर सिर्फ अकाउंट साइनअप देखेगा, ये सर्वर सिर्फ प्रोडक्ट बाई करने वाला फीचर देखेगा, ठीक है। जस्ट give me a minute, yeah. So my question would be, जब बिग बिलियन डे सेल होता होगा तो जो वो स्केल अप करते होंगे तो अपने किस सर्वर को ज्यादा स्केल अप करते होंगे? कोई एक नॉर्मल लॉजिकली कोई बता सकता है क्या कि अपने इस सर्विस को वो डाउन कर देते होंगे क्योंकि ये ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता होगा उस टाइम पे, वो अपने इस सर्वर को ज्यादा कर देते होंगे? एनीवन? लॉगिन वाला को डाउन कर देते होंगे। चलो बढ़िया है। देखो जब बिग सेल वेल चलता है तो ऑलरेडी सब लोग प्री लॉग्ड इन होते हैं, ये हमारा प्री लॉग्ड इन ऑलरेडी ये रह के रहता है। तो हो सकता है कि जब बिग बिलियन डे सेल चल रहा होगा उस टाइम पे हम लोग जो होता है ना, वो जो लॉगिन के सर्वर्स होंगे ना, वो उसको स्केल अप नहीं करेंगे, वो अपने ऑर्डर परचेज कार्ट वाले जो हमारे माइक्रो सर्विसेज होंगे वो इसको ज्यादा वो सर्वर को स्केल अप करके रखते होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि ये कौन से सर्वर को कब ये अप करते होंगे, कब डाउन करते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा पब्लिक लोड बैलेंसर, हमारे VMs, हमारे AV सेट के बारे में। हाँ, कॉलिंग में, ओके, नो इश्यूज। चलो अब हम लोग अब बढ़ते हैं हमारे कैटेगराइजेशन में। दैट्स आवर स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन, दैट इज बेसिक एंड स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। लेट मी डिलीट इट फर्स्ट। So what was my standard categorization of the load balancer? It was basic and standard. ठीक है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर, ठीक है। अब जो इसके जो प्री डिफाइंड रूल्स थे हमारे बेसिक के लिए, हमारे बेसिक के लिए प्री डिफाइंड रूल ये था कि इसका जो पब्लिक IP होगा, इसका जो IP होगा, दैट शुड बी बेसिक, ठीक है। ये इसका हमने जो उसके कल SKU को बेसिक किया था, याद है? हमने Yes, इसके Yes, SKU को sir. किया था
अगर बेसिक लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है तो इसके पब्लिक आईपी का जो एसक्यू होना चाहिए दैट नीड्स टू बी एन बेसिक पब्लिक आईपी। ठीक है, वही ऑन द सेम केस ऑन द स्टैंडर्ड आईपी हमारे पास स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करने के लिए दिस वेयर वीएम्स। ओके, हमारे वीएम्स के आईपी को जो बोल रहा था मैं। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए हमारा दो कंडीशन में से कोई भी एक हो जाए देन वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट। मैं इसको बोल रहा हूं नो पब्लिक आईपी, नो पब्लिक आईपी। हमें जब भी स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करना है तो हमारे वीएम्स को या तो कोई भी पब्लिक आईपी एलोकेट ना हो या फिर एनीवन स्टैंडर्ड एसकेयू एलोकेट होगा, तभी हम ये स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। चलो एक और चीज बात करते हैं बेसिक लोड बैलेंसर में। कल कहीं भी हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में बात नहीं किया क्योंकि इसके पास नो सिक्योरिटी होता है। बाय डिफॉल्ट इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता है। और इन द सेम वे वी हैव ऑन द स्टैंडर्ड साइड वी हैव एनएसजी कॉन्फ़िगर्ड, हमें एनएसजी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, इसके वीएम्स में बाय डिफॉल्ट नो इंटरनेट रहता है, नो इंटरनेट टू वीएम्स, ये हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है तो ये इंटरनेट को भी एक्सेस दे देता है, सब कुछ का ये एक्सेस फ्री में एक्सेस रहता है। ठीक है, तो दिस बेसिक जनरली कम्स, ये फ्री होता है और ये इसमें काफी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। Sir, it बट can access minimum number also. हाँ, It can do वो है difference. कि वीएम्स के जो नंबर होता है ना, ये वीएम्स दीज आर लिमिटेड। ठीक है, बट दिस स्टैंडर्ड इसके पास सिक्योरिटी भी है, इसके पास अपना स्टैंडर्ड आईपी भी है एंड दीज आर जनरली क्वाइट मतलब कि दीज आर कॉस्टली और रादर दीज आर चार्जेबल। ठीक है, चार्जेबल बेस्ड ऑन वॉट एवर यूज दैट यू आर डूइंग फॉर इट। ठीक है, तो अब तुम लोग को काफी एक क्लियर आउट नॉलेज आ गया होगा कि हम लोग इंडस्ट्री में, बताओ, बेसिक यूज करते हैं कि स्टैंडर्ड यूज करते हैं? स्टैंडर्ड यूज करते होंगे बिकॉज स्टैंडर्ड हैज इट्स ओन एडवांटेजेस, बिकॉज इट हैज सिक्योरिटी। हमारे पास सबसे बड़ा बिग पॉइंट है सिक्योरिटी, और हमारे पास वीएम्स के जो लिमिटेशंस है ना, वो शायद अगर इसके पास 30 वीएम्स का लिमिटेशन है तो इसके पास हो सकता है अराउंड 300 वीएम्स तक ये सपोर्ट कर सकता है। सी 300 वीएम्स इज मतलब ह्यूज, मतलब 300 सर्वर, समझ रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक आर्किटेक्चर आज डिजाइन करने वाले हैं। इट विल बी योर आर्किटेक्चर फॉर, अब हम लोग जो आज सर्व करेंगे फॉर एन स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू लुक ओनली फॉर द स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर पार्ट। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अपना सब्सक्रिप्शन होता है, दिस वन इज द Azure सब्सक्रिप्शन। स्पेलिंग क्या होता है यार? सब्सक्रिप्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इनसाइड इट सॉरी ये तुम्हारा क्या रहता है? Resource group. Resource group. resource group, and this was your Azure subscription. Azure subscription। चलो ये तो हो गया, रिसोर्स ग्रुप हो गया। अब इसके बाद क्या रहता है हमारा? Virtual group. Virtual network. वर्चुअल ग्रुप। वर्चुअल ग्रुप कौन बोल रहा है? Virtual, हाँ, virtual network. वर्चुअल नेटवर्क यार, ये चला जाएगा मेरा वर्चुअल नेटवर्क में। ठीक है, लेट्स गिव दिस अ नेम, वर्चुअल नेटवर्क। चलो अब वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्या रहता है हमारे पास? Subnet. ठीक है, आज हम लोग सबनेट बनाएंगे। ठीक है,
so we will just naming it out. This will be subnet 1 and this will be subnet 2. ठीक है, सबनेट 1 सबनेट 2 बन गया. अब इस सबनेट के अंदर रहता है एक हमारा virtual Virtual machines. machine. वर्चुअल मशीन. चलो वर्चुअल मशीन बना देते हैं दोनों जगह. ठीक है. These two are VMs. These two are, ये VM1 हो गया, ये VM2 हो गया. ठीक है. अब जो हम लोग अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मान लो यू एज अ यूजर, अब तुम्हारे पास, तुम अगर यूजर हो, यू हैव योर ओन मशीन यहाँ पे है तुम्हारे पास. चलो मशीन बना लेते हैं पहले. बन जा भाई. चलो ठीक है. सो दिस इज योर यूजर मशीन. ठीक है, यूजर मशीन और रादर हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लाइंट मशीन. क्लाइंट मशीन. ठीक है. ये क्लाइंट मशीन क्या करेगा? अब हमारे पास एक अब क्लाइंट मशीन क्या करेगा? दिस क्लाइंट मशीन विल हिट द, इसे बोलते हैं हम इंटरनेट. ठीक है. सो दिस इज द इंटरनेट. दिस क्लाइंट मशीन विल हिट द इंटरनेट. और ये इंटरनेट पे किसको हिट करेगा? फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे किसी आईपी को हिट कर रहा होगा ना. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं इस इंटरनेट पे जाके इस VM1 और VM2 के आईपी को हिट करने वाला हूं, बट वाया लोड बैलेंसर. ठीक है. तो मैं किसे हिट करूंगा? यहां से मैं एक लोड बैलेंसर बनाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. लेट्स क्रिएट अ लोड बैलेंसर. ठीक है. एंड नेम इट एज स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर. परफेक्ट. ये एक स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर है. तो फिर जब हम हिट करेंगे इंटरनेट पे इसके आईपी को, तो वी विल बी हिटिंग द आईपी ऑफ द स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर. और अब ये इन रिटर्न क्या करेगा? ये या तो VM1 पे कनेक्ट करेगा या तो एवरीवन या तो VM1 पे करेगा या VM2 पे करेगा. ठीक है. अभी जैसा हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. ठीक है. चलो. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रेप्लिकेट टुडे. हम लोग देखते हैं कि कैसे एक क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. चलो. तो कोई भी वॉलंटरीली स्टार्ट हो जाओ और पूरे इस प्रोसेस को मेरे को रिपीट करके यहाँ पे बताओ. मींस आई हैव टू क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप एंड देन एवरीथिंग. चलो. एनीवन हु वांट्स टू गो, और शुड आई से द नेम? देखो यार, मेरे को तुम लोग को मार्किंग भी देना है ऑन द डेली परफॉर्मेंस बेसिस, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 15 to 20 मार्क्स. मैं ही बोल देती हूँ. चलो ठीक है स्मृति, चलो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या Sir, करते हैं? resource group. Yes, sir. कहाँ गया रिसोर्स ग्रुप? Create. So then you can give a name to resource group. नेम दे देते हैं. इट शुड बी स्टैंडर्ड. नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड LBRG. ठीक है. स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर रिसोर्स ग्रुप. मैंने इस रिसोर्स ग्रुप का ये नाम दिया है. So then it is central US. सेंट्रल US. ठीक है. नेक्स्ट Next review create. चलो क्रिएट कर देते हैं. So then we will create virtual networks. ठीक है. चलो वर्चुअल नेटवर्क भी क्रिएट कर देते हैं. क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क. चलो यहाँ से क्रिएट करते हैं. Create. Yes, Create. I have to give a name. Standard. Yes, sir. Then इसको देते हैं स्टैंडर्ड VNet. VNet. ठीक है. नेक्स्ट आईपी एड्रेस पे चलते हैं. और Yes, sir. Next. हम्म. Yes, sir. Then we have to delete it and Delete give a subnet name. Yes, sir. ठीक है. इसको Subnet. देते हैं माई सबनेट 1. क्या रेंज दे बताओ?
Sir, 10.01.10 by 24. चलो एक और कर लेते हैं क्योंकि मैं 200 Yes, मिनट sir. बना Yes, sir. Yes, sir. Another 10.0.0.2 by 24. Yes, sir. चलो ऐड कर लेते हैं। चलो ये दोनों ऐड हो गया। नेक्स्ट सिक्योरिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट इनेबल Next tax. Yes, sir. Review create. रिव्यू क्रिएट। चलो रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट कर दें। Then we have to create. Yes, sir. चलो अभी सब लोग घर पे हो क्या? Yes, sir. मतलब हाँ. So your colleges are opening in September, I guess. Yes, sir. ये तो Yes, sir. बहुत लंबा छुट्टी मिल गया यार तुम लोग को। इतना तो हमें भी नहीं मिलता था। हमें तो मैक्सिमम 1 महीना 1.5 महीने का मिलता था। बट हमारे टाइम पे ये इंटर्नशिप कोर्स नहीं होता था। सो बेसिकली कॉलेज इज कंसिडरिंग दैट दिस इंटर्नशिप कोर्स दैट यू आर डूइंग समथिंग। मतलब तुम लोग अभी भी पढ़ रहे हो। सर सप्ली भी रहता है सर। Yes, sir. सप्ली भी रहता है अगस्त में. अच्छा सप्लीमेंट्री रहता है अगस्त में? Yes, sir. अच्छा तो सप्लीमेंट्री उनके लिए नहीं जिनका बैक लगा हुआ है? नहीं सर, मतलब सप्लीमेंट्री होता है. अरे होता क्या है ये तो बताओ यार। मैं सर मतलब वही सेमेस्टर में जिसका लगा हुआ होगा सब सप्लीमेंट्री देंगे. हाँ यार वही तो मैं बोला जिसका बैक लगा हुआ है। जिसका बैक नहीं है हाँ वो हाँ. करेगा। वही सर वही सर। चलो ठीक है। मेरा वर्चुअल नेटवर्क भी रेडी हो गया। नाउ विल बी क्रिएटिंग आउट आवर वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। सो स्मृति Yes, sir. मशीन। Yes, sir. Creating a virtual machine. Yeah. Azure. चलो So have to give a name of the resource group that is standard LPS. ठीक है बढ़िया है। Then virtual my VNet. VNet माई विंडोज No, इसको my Windows. माई विंडोज VM1 का नाम इसका दूंगा। ठीक है। इसको मैं विंडोज ठीक है। बनाऊंगा और मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये अपने आप ले लेगा। चलो परफेक्ट। सेंट्रल यूएस ले लिया। Yes, सपोर्ट ले लिया। इसमें मेरे को और कुछ चेंज करना है क्या स्मूथी? can you sir scroll down? हाँ Yes, sir. That one size. Yeah. हाँ ठीक है साइज कर Sir, दिया। Okay. availability set. Availability Yes, options. sir. चलो ये तो मैं ठीक है। हाँ, तो availability. for a Yes, virtual sir. machine to be configured in a load balancer Availability set. have to be in availability set। तो availability set तो अभी मेरे पास कुछ है नहीं। तो we will be creating a new availability set। तो मैं बस बना देता हूँ। बस लिख देता हूँ my AV set। क्रिएट कर देता हूँ। ओके हो गया। Yes, sir. चलो फिर वर्ड क्रॉस चेक कर लेते हैं। सब कुछ सही है। सब कुछ सही है। 3.5 GB पे है। सिलिकन पासवर्ड @123 पासवर्ड @123 मैच नहीं कर रहा है यार। पासवर्ड @123 अच्छा ऊपर वाला नहीं कर रहा है। ठीक है। इनबाउंड पोर्ट्स हम सब अलाउ कर देते हैं अभी। सब हाँ. ठीक है। नेक्स्ट Next disk. Yes, sir. कुछ नहीं करना है। चलो नेटवर्किंग पे Next. थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है। आज नेटवर्किंग पे ध्यान देते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क स्मूथी हमारा ये रहने वाला है स्टैंडर्ड VNet। Standard VNet. Yeah. ठीक है। ये हम पहले सबनेट में करने वाले हैं तो बाय डिफॉल्ट ये सबनेट 1 ले लिया। ठीक है। Yes, sir. चलो Yes, अब थोड़ा हम लोग कुछ इसके पब्लिक आईपी को देखते हैं। ये क्या पब्लिक आईपी बना रहा है? माई विंडोज VM1 का जो आईपी है वो क्या बना रहा है? तो अब हम यहाँ पे इसके आके देख रहे हैं। तो इसने तो माई विंडोज VM1 आईपी को स्टैंडर्ड पहले से उठा के Standard. रखा है। Yeah. ठीक है। और स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? Standard. स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो और बेसिक लोड बैलेंसर के लिए हमें यहाँ पे आके वापस से Basic. बेसिक Yes, करना sir. पड़ेगा। हाँ. ठीक है। Yes, sir. तो अब ये स्टैंडर्ड बनाना है। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है स्टैटिक है रहने दो। चलो बढ़िया है। ऑल गुड। ओके कर दिया मैंने। ठीक Yes, है। sir. अब यहाँ Then पे आके देखो। अब यहाँ पे आके देखो एक नेटवर्क NIC. Yes, sir. That बेसिक is अटैच्ड है। हम बोले ठीक है yes, चलो sir. बेसिक के पास रहने दो। ठीक है। अलाउ ऑल सेलेक्टेड पोर्ट। Next नेक्स्ट मैनेजमेंट। management. Next monitoring. नेक्स्ट मॉनिटरिंग। नेक्स्ट Next एडवांस। advanced. नेक्स्ट टैक्स। Next. review and You create। create.
Sir, you have to create it. चलो इसको क्रिएट करते हैं। तो जब तक ये डिप्लॉयमेंट होता है स्मृति, कैन वी डिप्लॉय अनदर मशीन? Yes, sir, you can create a virtual machine. चलो अब हमें वो वर्चुअल जो VM2 है ना उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो Create फ्री टाइल पे रहेगा ये अपना स्टैंडर्ड LG RG जो भी है, इसको virtual नाम machine. So my Windows virtual VM2 VM2। परफेक्ट। अगेन Yes, sir. अवेलेबिलिटी सेट देना है, availability set. Yeah. ये भी सेट पे चला जाएगा, ये यहाँ पे ये ले लेगा, 3 GB ले लिया। अगेन इसको Yes, सब sir. दे देते हैं। Username. Yes. सिलिकॉन पासवर्ड इज password @123 password @123 कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो कर रहा है यहाँ पे यार। चलो ठीक है, अगेन यहाँ पे सब कुछ अलाउ कर देते हैं। चलो अलाउ कर दिया मैंने। Next. इसको यहीं पे रहने, Next. इसके भी नेटवर्किंग पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक है, Yes, sir. नेट पे गया, ये सबनेट बस हमें 2 करना है तो बस 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन इसके भी Yes, हम sir. पब्लिक को देखते हैं, क्या ये फिर से स्टैंडर्ड लेके बैठा हुआ है? हाँ ठीक है, चलो Yes, स्टैंडर्ड। sir. Yes, sir. और हमें स्टैंडर्ड चाहिए भी, हमें Yes, sir. स्टैंडर्ड चाहिए भी। ओके कर दिया हमने। ठीक है, Yes, sir. अब हम एक काम करते हैं ना, एक Sir, नेट, NIC networking है। हाँ ये नेटवर्क सर्विस अभी ये बेसिक है, तो पिछले VM में तो बेसिक था। Yes, sir. ठीक है, No, इसमें sir. हम करते No, हैं। हाँ, yes, sir. अरे इसमें बेसिक था, इसमें मैं नन Yes, कर रहा sir. हूँ, Non कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं इसे नन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसे मैं नन कर दिया। नेक्स्ट मैनेजमेंट पे गया, नेक्स्ट मॉनिटरिंग पे, नेक्स्ट एडवांस पे, नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। Then you have to create it. चलो ये डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, इसे डिप्लॉयमेंट क्रिएट होने दो। तब तक हमारा एक VM रेडी हो गया, उस VM को थोड़ा हम लोग रीड करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इस VM में आया है। ठीक है, इस VM ओवरव्यू में गया तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड पब्लिक IP मेरे को मिल गया है। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। इस पे इसका प्राइवेट IP 10.0.1.4 है, 3.5 GB GIB का रैम है। चलो सब कुछ सही है। इसके नेटवर्किंग पे चलते हैं, तो हमने इसके नेटवर्किंग पे NSG को बेसिक करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो एक माई विंडोज VM1 NSG करके यहाँ पे अटैच हो गया। ये हमने किया नहीं था, हमने बस बेसिक सेलेक्ट किया तो ये खुद बना के यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अटैच कर दिया तो कर दिया। अब हम इस पे कनेक्ट करके इसको वेब सर्वर बनाते हैं। अच्छा, इसको बस कॉपी कर लेते हैं ना यहाँ से। ठीक है, दिस इज द RDP एप्लीकेशन। मैं PC ऐड करता हूँ, सिलिकॉन दे देता हूँ। ये था मेरा माई विंडोज VM1। चलो Yes, परफेक्ट, sir. ऐड करते हैं और कनेक्ट करते हैं। चलो भाई कनेक्ट तो करने दे रहा है मेरे को। ये रेडी हो गया क्या? अच्छा, डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस पे है। चलो ये भी डिप्लॉय हो गया, VM2 भी डिप्लॉय हो गया। एवरीवन सब हो हमारे साथ? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। यस चलो
ठीक है। ये VM2 के ओवरव्यू पे चलते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, पब्लिक आईपी मिला हुआ है, वो भी स्टैंडर्ड पब्लिक आईपी है, ये हम अभी देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और इसके ओवरव्यू सेक्शन पे जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका SKU स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसके नेटवर्किंग पे अगर हम आएंगे, इस VM के नेटवर्किंग पे आएंगे, तो यहाँ देखेंगे कि इसके पास ना कुछ NSG अटैच नहीं हुआ है। ये अटैच क्यों नहीं हुआ? Because you have tick None mark on the रखे थे none. NSG. Yes, ना, अब none इसके किए थे. नेटवर्क इंटरफेस है ही नहीं, इसके पास कुछ रूल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स है ही नहीं। ठीक है, अब इसके ना रहने से क्या दिक्कत होगा वो मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी पहले इसको वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, तो वेब सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? स्मूथी के अलावा कोई और है जो बता सकता है? सर हाँ चलो बताओ यार, बताओ, कौन बताएगा? पहले एक सैंपल वेबसाइट डाउनलोड करेंगे। पहले वेबसाइट डाउनलोड कर लेंगे, पहले सर्वर तो अच्छा। सर्वर तो बना। हाँ सर, सब सर्वर मैनेजमेंट। अच्छा, फिर ऐड रोल्स एंड फीचर्स। अच्छा, ऐड रोल्स एंड फीचर, चलो रुक जाते हैं थोड़ा देर इसको। तो चलो, ऐड रोल्स एंड फीचर। ठीक है, नेक्स्ट 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 सर्वर नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो यहाँ पे अलाउ क्या कर रहे हैं? अरे कहाँ चली गई यार? Web. ठीक है, वेब सर्वर। तो फिर नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। इंस्टॉल। ठीक है, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो हमारे जो पहले VM का जो IP था, पहले VM का IP क्या था? ये जो पहले VM का जो IP था, दिस वाज 74.249। अगर हम इसे हिट करते हैं, तो अभी वहाँ पे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक ये वेब सर्वर बना नहीं है। अगर वेब सर्वर बन गया तो हमारे पास कुछ कुछ कंटेंट तो यहाँ पे आएंगे, वो IIS लिखा हुआ कुछ तो आएगा। ठीक है, चलो ये जब तक होता है हम एक काम करते हैं, हम अपने सेकंड VM को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। कहाँ गया मेरा सेकंड VM? ये रहा मेरा सेकंड VM। ओवरव्यू पे गया मैंने और इसके IP को कॉपी कर लिया। अभी देख लो, इसका पब्लिक IP 23 से स्टार्ट होता है, इसका पब्लिक IP 74 से स्टार्ट हो रहा है। एवरीवन ठीक है, बस ये यस सर। माइंड पे रखना। ठीक है, इसका पब्लिक IP 23 पे, इसका ये है। एक PC यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सिलिकन। ये रहेगा माई विंडोज VM2। ऐड कर दिया मैंने। अब चलो, मैं कनेक्ट करने से पहले पूछता हूँ, ये मेरे को कनेक्ट करने देगा कि नहीं देगा? अरे बताओ यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना। सर देगा। सर देगा. चलो It चलो will देगा allow. सर। चलो फिर मैं कनेक्ट करता हूँ। अब तुम लोग बोल दिए हो तो देना चाहिए, अजोर वाले को तो समझ में आना चाहिए कि सिलिकन के बच्चे बोल रहे हैं, देना चाहिए। ये तो नहीं दे रहा है यार, ये तो बोल रहा है अनेबल टू कनेक्ट। चलो मैं बताता हूँ ये अनेबल टू कनेक्ट क्यों हुआ। ठीक है, ये अनेबल टू कनेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि इसके नेटवर्किंग पे इसको सर पता ही। नेटवर्किंग पे नन किए थे ये सर, मुझे वो मैं गेस की थी. अरे यार, गेस से नहीं ना चलता है इंडस्ट्री। अगर गेस करते रहोगी तो फिर पता चल रहा क्लाइंट का कुछ नुकसान हो गया तब तक, या फिर खुद के कोई प्रोडक्ट बना रही होगी, वहां पे तुमने गेस किया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमने उसके नेटवर्किंग पे नन किया हुआ है। अब देखो, इसको नेटवर्किंग में पता ही नहीं है कि इनबाउंड में कुछ आएगा, आउटबाउंड पे कुछ आएगा, क्योंकि इसके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एडेड ही नहीं है। तो इसे पता ही नहीं है कि भाई मेरे साथ होने क्या वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम जब NSG अटैच नहीं करते हैं तो हम एक काम करते हैं, हम होम पे जाते हैं, हम एक
खुद का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना के उसके ऊपर अटैच कर देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गिव मी अ मिनट यार। हाँ हेलो गाइस, ठीक है। तो हम देखो, अगर हम एनएसजी पे जाएं तो ऑलरेडी एक एनएसजी बना हुआ है। ये किसका एनएसजी है? वो जो हमने बेसिक सेलेक्ट किया था ना, तो ये बाय डिफॉल्ट एक माई विंडोज VM1 एनएसजी बना। VM1 का NSG, यस सर, VM1 वर्चुअल का मशीन 1 का। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक एनएसजी खुद का बनाते हैं। हम बोलते हैं तुम स्टैंडर्ड LBRG में रहने वाले हो, तुम्हारा नाम रहेगा माई VM2 एनएसजी कर सकते हैं, या माई सबनेट लेवल पे हम एनएसजी लगा सकते हैं, माई सबनेट 2 NSG। ठीक है, एक चीज बताते हैं तुम लोगों को। ठीक है, एक चीज हम बताते हैं। देखो एनएसजी जो होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, हम एक वर्चुअल मशीन के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम सबनेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब वर्चुअल मशीन के ऊपर हम जब एनएसजी लगाते हैं तो ये अटैच कहाँ होता है? इसके नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच होता है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? whenever we attach a NSG directly to the VM, then it's get attached to its network interface। लेकिन जब हम सबनेट लेवल पे एनएसजी अटैच करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट वो जो पर्टिकुलर एनएसजी है, अब इसके अंदर कितने भी VMs रहे वो सबके ऊपर बाय डिफॉल्ट अटैच कर जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं माई सबनेट 2 NSG मैंने किया, नेक्स्ट टैग्स किया, नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट कर देता हूँ, रनिंग फाइनल वैलिडेशंस। चलो देख लेते हैं अपना सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया क्या। चलो एक सर्वर तो बन गया, VM1 मेरा रेडी है विद दिस पर्टिकुलर IP 74.24249। इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। लेट इट डिप्लॉय इट फर्स्ट, देखते हैं क्या होता है। तुम लोग को पता है इस बार मैंने जो, जब तुम लोग ऑड सेमेस्टर में थे, तो जो तुम्हारे जूनियर्स थे फर्स्ट ईयर का, मैंने फर्स्ट ईयर का इस बार मैंने आके C प्रोग्रामिंग का मैंने क्लास लिया था पूरा सेमेस्टर। किसी को पता है ये बात? नहीं जे सेक्शन नहीं कुछ दोस्त होंगे फर्स्ट ईयर के, जे सेक्शन का मैंने पूरा C प्रोग्रामिंग मैंने पढ़ाया था। एक कुछ मतलब ये चल रहा था कि एलुमनाई को अवेलेबल है इन भुवनेश्वर, then we want someone from the industry to just have them go for the C programming, ताकि उन्हें कुछ इंडस्ट्री का भी नॉलेज मिले, साथ ही साथ की प्रोग्रामिंग कर क्या रहे हैं क्या नहीं। तो अगर कोई जे सेक्शन के होंगे तो उनसे पता करना। ठीक है, चलो माई सबनेट 2 NSG तो यहाँ पे बन गया। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम इसके इनबाउंड सिक्योरिटी रूल पे जाते हैं, हम एक ऐड कर देते हैं कि भाई कोई भी सोर्स से आए, कुछ भी पोर्ट से आए, डेस्टिनेशन एनी, जो तुम्हारा सर्विस होगा ना वो तुम RDP कनेक्शन दे दोगे उससे। RDP कहाँ गया यार? तो ऊपर है। हाँ ठीक है, ठीक है, RDP दे दोगे और इसे अलाउ कर दो। चलो एक और इनबाउंड उसमें ऐड कर देते हैं कि चलो RDP तो कनेक्शन मिल गया, अब एक काम करो, कस्टम भी हम इनेबल करके रखते हैं, डेस्टिनेशन पोर्ट रेंज सब कुछ मैं अलाउ कर दिया कि अब ये नेटवर्क सिक्योरिटी को कहाँ भी अटैच हो वो मेरे को सब कुछ अलाउ करने दे देगा, क्योंकि हमने वो दोनों चीज इसमें ये कर दिया। ठीक है, अब हम इसके देखो सेटिंग्स में एक सबनेट करके है। ठीक है, दिस सबनेट दिख रहा है,
हम इस सबनेट पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक एसोसिएट का बटन मिलेगा कि इस एनएसजी को एसोसिएट कहाँ करना है। तो मैं बोला इसे एसोसिएट करना है, क्या सबनेट 1 पे करना है कि सबनेट 2 पे करना है? मैं बोल रहा हूँ सबनेट 2 पे 2 करना पे। है। ठीक है, तो इसे ओके कर देंगे हम। चलो, अब ये एसोसिएट तो हो गया। अब हम अपने वर्चुअल मशीन्स पे चलते हैं और सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाले के आप नेटवर्किंग के जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ दिख रहा है कुछ, माई सबनेट 2 एनएसजी जो अभी जस्ट हमने बनाया वो यहाँ पे अटैच हो गया। सी, अब इसके पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आ गया। तो अब हम यहाँ पे कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। अब ये कनेक्ट करने मेरे को दे देगा। अरे नहीं दे रहा है। अच्छा, वेट करते हैं थोड़ा देर, फिर डिलीट करके फिर से ऐड कर देते हैं। अलाउ एनी RDP 3389 TCP, अलाउ 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 अलाउ। ठीक है, चलो कोई भी चलते हैं। सिलिकन माई विंडोज VM2 दे तो देना चाहिए इसे। 1 मिनट रुक जाए somebody। चलो देखो ये कनेक्शन मेरे को अलाउ कर दिया है। चलो अब देखो मैंने एनएसजी ऐड किया तो मेरे को ये कनेक्शन अलाउ कर दिया है। अब इसे भी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। वेट करते हैं थोड़ा देर, सर्वर मैनेजर ओपन होगा। ठीक है, जब इस पे हम लोग वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेंगे उसके बाद हम अपने लोड बैलेंसर पे चलेंगे। तो कोई भी तुम लोग में से रेडी रहो जो मेरे को लोड बैलेंसर बनाना पूरा वहां पे बताएगा। एनीवन, कोई भी रेडी रहना। वेट करते हैं। सर ये जो हमने सेकेंडरी जो एनएसजी ऐड किया है VM2 में, सर इसके मतलब क्या डिफरेंस है सर अगर हम लोग डिफॉल्ट उसको ऐड करते हैं और सेकेंडरी ऐड करते हैं, मतलब बाहर से। सेकेंड टाइम ऐड करते हाँ मतलब बाहर से ना। देखो हैं। हाँ डिफॉल्ट एनएसजी मतलब क्या होता है, जब वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है ना, मैं उसे बोल रहा हूँ तो अपने पास एक बेसिक सिक्योरिटी तो अपने पास लेके चल। ठीक है, उस बेसिक सिक्योरिटी में वो हमेशा RDP अलाउ करके चलता है। वो हम लोग एनएसजी वाले क्लास में पढ़े थे। ठीक है, अब लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो NIC के ऊपर नेटवर्क सिक्योरिटी था हमने उसे डिसेबल कर दिया। मतलब बोला कि तुम नेटवर्क सिक्योरिटी अपने पास बना के रखो ही नहीं। अगर नेटवर्किंग पे अगर एक वर्चुअल मशीन को पता ही नहीं है कि उसके पास क्या आने वाला है और उसके पास से क्या जाने वाला है, तो वो कभी भी RDP कनेक्शन या फिर नॉर्मल एक HTTP कनेक्शन भी रिक्वेस्ट तो कभी नहीं रखेगा ना अपने पास। अरे यस सर। एक VM को पता होना चाहिए ना कि व्हाट नेटवर्किंग एस्पेक्ट दैट ही इज गोइंग टू सर्व। ठीक है, तो इसी कारण वो मेरे को RDP अलाउ नहीं किया। इसलिए मैंने क्या किया, बाहर से एक एनएसजी बना के उसके सबनेट टेबल पे डाल दिया। अब सबनेट पे डाल दिया, उस सबनेट के अंदर ऑलरेडी वो VM पड़ा हुआ था तो VM ने उस एनएसजी को उठा लिया। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। W वेब IAS को ऐड फीचर्स करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, चलो अब कौन बताएगा मेरे को लोड बैलेंसर कैसे बनना है? अरे बताओ यार, कल लोड बैलेंसर बनाया हो, कल ही समय बना। आए। हाँ चलो स्टार्ट करो। हाँ अगेन सर, लोड बैलेंसर। अच्छा चलो, चलो ठीक है।
लोड वहाँ पे बैलेंसर। है हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, लोड बैलेंसर तो क्रिएट क्रिएट रिसोर्स ग्रुप स्टैंडर्ड, ठीक है, विल गिव इट अ नेम लाइक माय स्टैंडर्ड एलबी, माई स्टैंडर्ड एलबी, ठीक है, पब्लिक करेंगे टाइप को, पब्लिक करेंगे टाइप को, इस पे इंपॉर्टेंस नहीं देना, एसक्यू, एसक्यू क्या तो रहने वो तो स्टैंडर्ड है ना। वाला, स्टैंडर्ड है, ठीक है। कल हमने बेसिक बनाया था तो हमने बेसिक लोड बैलेंसर बनाया था, हाँ सर, आज हमने स्टैंडर्ड बनाना है तो स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर। टीयर रीजनल जैसा है रहने देते हैं, माई फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, माई तो फ्रंट ऐड, ऐड यस कर सर, ऐड ऐड करते हैं, माई फ्रंट एंड कॉन्फ़िग, then we will choose a public IP address, yes name, क्रिएट कर देते हैं, ये बोल देते हैं माई एलबी आईपी, माई एलबी आईपी, ठीक है। एसक्यू देख लो, ये भी स्टैंडर्ड उठा के लेगा, रीजनल जो भी है, जोन रिडंडेंट है, माइक्रोसॉफ्ट Okay. नेटवर्क जैसा रहने दो, ओके, ठीक है। Yes. नाउ ऐड इट, then backend tools, नाउ ऐड इट। तो सुनो, बैकएंड पूल्स और इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स है ना, ये बाद में ऐड करते हैं। तो अभी जितना मेरा फ्रंट एंड आईपी तक हो गया, हम इतना पे रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, बैकएंड पूल्स बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। चलो बैकएंड पूल्स बाद में ऐड करते हैं। चलो रिव्यू एंड क्रिएट, ये जब तक डिप्लॉय होता है हम अपने पहले वीएम पे जाके, ये मेरा पहला वीएम है, और इसके जो ये सर्वर को हम बस एक रेस्पॉन्स में बता देते हैं कि आई एम VM1, इसे बस इतना बता देते हैं। तो कहाँ जाना पड़ेगा, अरे बताओ कहाँ जाना है, इसे बताना है कि दिस इज फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर, दिस पीसी, दिस पीसी, विंडोज सी, Windows, ठीक है, inet pub, inet inet pub, pub, www, www. ठीक है। अब yes, इसे बस ये कर देते हैं, ओपन विथ नोटपैड प्लस, notepad, हटा देते हैं। लो So guys, I am from VM1, अच्छा I am from One. Windows, ठीक है। सेव कर देते हैं इसे, यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम विंडोज VM1, ठीक है। यहाँ भी सक्सीड हो गया, इसे भी क्लोज करते हैं अपना, और यहाँ भी चलते हैं अपने इस पे फाइल मैनेजर पे, दिस पीसी, विंडोज सी, inet pub, www root, क्या था यार, मैसेज क्या था, कॉपी करते हैं VM2, और कुछ ऐड करेंगे नहीं, छोड़ो, और क्या ऐड करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं, इसे ये कर देते हैं। और इसका जो आईपी था, हमारा जो वीएम का आईपी था, उस वीएम के आईपी पे देखते हैं, उस पर हिट करके वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्चुअल मशीन्स VM2, इसका आईपी था 23 से कुछ स्टार्ट हो रहा है, कॉपी करते हैं, तो यहाँ पे VM2 आना चाहिए, आ जाए भाई। क्या हो गया इससे, VM2 पब्लिक आईपी कॉपी किया, यही तो है। इस पे HTTP अलाउड था ना सब कुछ, Yes sir. ये सर्वर बना कि नहीं बना, IIS तो सही है, सब कुछ चल रहा है। अच्छा सेव नहीं हुआ क्या, inet pub
यहाँ पे तो है यार, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख लेते हैं। चलो ये तो काम कर रहा है, ये वेब सर्वर काम नहीं कर रहा है। ठीक है देखते हैं। एक काम करते हैं, इसके एनएसजी पे कुछ ऐड करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। इसके एनएसजी पे इसके एनएसजी में कुछ कंफिगर करना पड़ेगा। ये VM2 पे गया, नेटवर्किंग पे गया, नेटवर्किंग पे allow any custom inbound 80. अच्छा एक और ऐड करते हैं इनबाउंड पोर्ट रूल, इसे एनी कर देते हैं। HTTP allow ऐड। अब देखते हैं अगर HTTP ऐड करने से भी आ जाए तो बढ़िया है। रिफ्रेश करके देखते हैं। TCP any allow डिनाई तो ऑल इनबाउंड कर रहा है। अब ये देखते हैं रिफ्रेश करके। ये सर्वर पे कुछ तो गड़बड़ हुआ, या तो IIS सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं हुआ बढ़िया से, या फिर कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। inet pub www ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पे तो सब कुछ चल रहा है। माई विंडोज VM2 हमने तो यहाँ सब कुछ अलाउ कर दिया है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को लेके विंडोज VM2 नेटवर्किंग, लेकिन ऐसे इतना है। सेंट्रल US स्टैंडर्ड रीजन, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम अपने बैकएंड पूल को तब तक कन्फिगर करते हैं, तब तक दूसरा VM भी रेडी कर लेंगे अगर टाइम मिले तो। अलाउ एनी RDP इनबाउंड, ठीक है 100 है, 110 पे ये अलाउ कस्टम है, ये TCP है पोर्ट 80 पे। हाँ ये तो सही है। सब कुछ आएगा क्या? चलो ठीक है, कन्फिगर हो गया। देख लो ये आ रहा है हेलो गाइज आई एम फ्रॉम विंडोज 1, और ये आ रहा है हेलो गाइज आई एम फ्रॉम VM2। ठीक है चलो ये कन्फिगर हो गया है। तो कौन बता रहा था लोड बैलेंसर कन्फिगर करने के लिए? हमने लोड बैलेंसर तो बना लिया। यस सर। ठीक है चलो लोड बैलेंसर हमने बना लिया। तो हमने अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड IP कन्फिगरेशन दिया था, राइट? हाँ बैकएंड तो बैकएंड चलो बैकएंड दे देते हैं, Add ऐड कर बैकएंड पूल, माई बैकएंड पूल नाम दे देते हैं। फिर वर्चुअल नेटवर्क ऐड करेंगे। ये अपना वर्चुअल नेटवर्क रहेगा। Add और ये देखो हमारे पास 2 विंडोज की मशीन अवेलेबल है इस पे ऐड होने के लिए, तो दोनों को ऐड कर देते हैं कि भाई Yes. तुम लोग इसी दोनों पे तुमको अपना ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। add ऐड then save। देन सेव। क्या हो रहा है? अच्छा डेवलपमेंट इज प्रोग्रेस। देख लो इसका IP अभी 74.249 है, ये पहले VM का है, और इसका IP 23.99 है। चलो बैकएंड पूल्स हो गया, हेल्थ प्रोब्स अब सेट करना है। हाँ सर। ठीक है चलो हेल्थ प्रोब पे सेट करते हैं। Add ऐड
सब कुछ डाल देते हैं माई हेल्थ प्रोब। हम्म। माई हेल्थ प्रोब बाय डिफॉल्ट रहता है टीसीपी प्रोटोकॉल 80 इंटरवल सेकंड्स 5। इसका मतलब ये कहा 2 प्रोब के बीच में कितना का टाइम रहना चाहिए, मतलब 5 सेकंड के बाद तुम अपने हेल्थ प्रोब को हिट करना। नेक्स्ट करते हैं। आप बताओ लोड लोड बैलेंस। बैलेंसिंग रूल ठीक है ऐड चलो ऐड करते हैं। इससे हम बोलते हैं भाई तू नाम ले ले माई रूल। ठीक है फ्रंट एंड आईपी। हाँ कंटेंट होगा ले लेते हैं, माई बैकएंड पूल ले लेते हैं। ये टीसीपी रहने वाला है, पोर्ट 80, बैकएंड 80 पोर्ट 80। 80 यस हेल्थ सर प्रोब जो हमने प्रोब बनाया अभी, बनाया था। चेस्ट परसिस्टेंस नन है। None। देखो परसिस्टेंस का मतलब तुम एक्सप्लेन करोगे कि मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ सर, मतलब अगर लाइक कोई भी यूजर कुछ सर्च करता है या फिर कुछ भी, तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम चीज को ही सर्च करेगा, तो जो सर्वर उसे मतलब वो डेटा लाके दिया था, वही हाँ सर्वर फिर से ही मतलब कुछ टाइम के लिए उसी के पास वो डेटा रहेगा, तो वो सेम सर्वर ही मतलब जब हम लोग कुछ नेक्स्ट टाइम सर्च करेंगे उसी के रिलेटेड, तो वही सेम सर्वर ही हमें डेटा लाके देगा। ठीक है चलो मैं बताता हूँ और भी प्रिसाइज वे में। सेशन परसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने किसी वेब सर्वर को हिट किया है, अगर मैं किसी लोड बैलेंसर या किसी भी आईपी को या फिर किसी भी डोमेन को हिट किया है, उसने उसमें से किसी एक सर्वर ने मेरे को रिस्पॉन्स भेजा, तो अगर ये नन रहा, अगर ये नन रहा तो वो सेकंड हिट पे मेरे को हो सकता है कि दूसरा वेब सर्वर मेरे को हिट करे। लेकिन अगर ये क्लाइंट आईपी रहा, तो क्लाइंट आईपी रहा मतलब कि अगर मेरा क्लाइंट आईपी अगर उस सर्वर पे स्टोर हो गया जाके, तो वो पहले चेक करेगा कि अच्छा ये क्लाइंट आईपी तो ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट मांग के बैठा था एक बार, तो इसको वापस से जिस सर्वर ने सर्व किया था उसी सर्वर से रिस्पॉन्स लाके भेज देते हैं। उसका मतलब सेशन परसिस्टेंस का मतलब वही होता है। ठीक है आइडल टाइम आउट का मतलब मैं बताता हूं कि देखो जब भी तुम लोग एक facebook.com पे या फिर लेट्स सपोज लिंक्डइन, ठीक है मैंने लिंक्डइन पे हिट किया, ठीक है अब हमें कुछ कंटेंट्स मिला, दिस इज माय लिंक्डइन और मेरे को यहाँ पे मेरे को कुछ कंटेंट्स मिल रहे हैं। ये कौन है? अच्छा आदर्श। ठीक है यहाँ पे मेरे को कुछ कंटेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है तो जब मैं एक बार इसे हिट किया ना, तो अगर मान लो मैं यहाँ से काट भी देता हूँ इस ब्राउजर को, उस टैब को, स्टिल वो नेक्स्ट 4 मिनट तक उस सर्वर के पास मेरा एक कनेक्शन रिक्वेस्ट बना के बैठा हुआ होगा कि हमारे इस मैक मशीन से, मतलब मेरे लोकल मशीन से एक रिक्वेस्ट आया है। तो आइडल टाइम आउट मिनट मतलब वही होता है कि HTTP कनेक्शन ओपन है विदाउट रिलाइंग, मतलब कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे या ना भेजे उस 4 मिनट के अंदर हम तो भाई कनेक्शन बना के बैठ जाएंगे। इसका कहने का मतलब यही होता है। ठीक है और क्लियर हुआ आज सबको ये यस क्या सर। करता है? ठीक है चलो अब सेव कर देते हैं। अब चलो भाई अब माई लोड बैलेंसर रूल सेव हो जाता है तो हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो जाता है। चलो अभी ये सब बाद में देखेंगे, अब हम ओवरव्यू पे चलते हैं। ओवरव्यू पे जाने के बाद हमको मिलेगा कि क्या कि अरे भाई हमारे एक लोड बैलेंसर को तो एक पब्लिक आईपी मिल गया जिसका नाम है 20.221.40.118। सब लोग इस लोड बैलेंसर को हिट करो, मैं भेज रहा हूँ वो आईपी तुमको भेज रहा हूँ। ठीक है अब मेरे को बताओ कि किसको क्या मिल रहा है। चलो इस लिंक को सब लोग हिट करो। अगर मोबाइल से भी ज्वाइन किया तो भाई मोबाइल में भी तो ब्राउजर होता है, हिट करो और बताओ BM1 आ रहा है कि BM2 आ रहा है। तब VM1 आ रहा है मेरा। हम्म और कोई? AM1 आ रहा है सर। VM1 आ रहा है सर। और सर VM1 आ रहा। BM2 किसी का नहीं आ रहा है? सर सर VM2 है। VM1 आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है BM2 किसी का? सर VM2 है। BM2 आया किसी का? यस चलो ठीक है चलो BM1 भी आ रहा है, BM2 भी आ रहा है। ठीक है तो अब देखो मैं तो अब आईपी हिट कर रहा हूँ ये लोड बैलेंसर का, और ये इंटरनली BM1 BM2 पे मेरे को रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो मेरे को पता चल जा रहा है कि दैट आवर ट्रैफिक इज नाउ गेटिंग रिडायरेक्टेड टू एनी वन ऑफ आवर सर्वर। ठीक है चलो ये हो गया हमारा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर। अब चलो कुछ और बात करते हैं। ठीक है आ जाते हैं हमारे पोर्टल पे, हम अपने होम पे आते हैं।
ठीक है, अब होम पे आते हैं, तो होम पे आने के बाद हम वर्चुअल मशीन्स पे जाते हैं। ठीक है, अब वर्चुअल मशीन्स पे गए तो इसको देखे, इसका पब्लिक आईपी 74 है, इसका पब्लिक आईपी 23 है, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला, मैंने तुमको बोला कि नो पब्लिक आईपी भी हो सकता है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने स्टैंडर्ड आईपी लेके चला। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, एक काम करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड आईपी को हटा देते हैं और इसका पब्लिक आईपी इसके मतलब कि स्टैंडर्ड आईपी को हटा देते हैं, मतलब इसके पास नो पब्लिक आईपी होगा। वो हटाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं हम लोग। उससे पहले इधर ये कनेक्शन रिक्वेस्ट आरडीपी बंद कर देते हैं, दोनों जगह से बंद हो गया ना, दोनों जगह से। ठीक है, कैंसिल करो। और कहीं है तो भाई तू बंद होना है यार। हाँ यार कैंसिल। चलो ठीक है, ये कहाँ से पकड़े वाला है। ठीक है, अब हमारे पास दो अभी पब्लिक आईपी है टू आवर फॉर आवर पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। हम पहले चलते हैं VM2 पे, VM2 पे इसके पब्लिक आईपी पे चलते हैं और इसके पब्लिक आईपी के ओवरव्यू पे चलते हैं। ठीक है, इसके ओवरव्यू पता चला कि अच्छा ये रहा तुम्हारा पब्लिक आईपी, ये रहा तुम्हारा SKU। तुमको जो करना है कर लो। मैं बोलता हूँ कि मेरे को डीएसोशिएट कर दो यार, मेरे को पब्लिक आईपी इस VM का नहीं चाहिए। तो मैं बोला कि मेरे को डीएसोशिएट कर दो वर्चुअल मशीन। अभी देख लो 74 और 23 दोनों का अपना डिफरेंट है। अभी अभी मैं एक का डीएसोशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, शायद डीएसोशिएट हो गया। ठीक है, अब डीएसोशिएट हो गया। सेम हम जाएंगे अपने पहले वर्चुअल मशीन पे, अपने पहले वर्चुअल मशीन पे, और इसके भी पब्लिक आईपी को डीएसोशिएट कर देंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है ना। हम इतना पब्लिक आईपी लेके अपने पास करेंगे क्या। चलो वेट करते हैं थोड़ा देर। 74 और 23 याद रखना, दोनों का अपना पब्लिक आईपी था। 74 से स्टार्ट होता था, एक का 23 से स्टार्ट होता था। हाँ भाई हो जा। चलो, अब दोनों डी एसोसिएट तो हो गया। अब ये रहा मेरा, ये 74 और 23 से स्टार्ट होता था। मैं थोड़ा देर रिफ्रेश मारता हूँ इसको। कुछ चेंजेस दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? पब्लिक सर। आईपी चेंज हुआ है। पब्लिक आईपी चेंज हुआ है दोनों चेंज हो 2020। गया क्या? यस लोड सर, बैलेंसर सेम का हो पब्लिक गया। आईपी आ गया। समझ गए क्या था इसके पीछे का? ये कि मैंने जैसे ही इन दोनों का पब्लिक आईपी हटा दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे बैकएंड पूल पे इसे पता था कि भाई हम तो लोड बैलेंसर से जुड़े हुए हैं, तो हमें उसका पब्लिक आईपी दे दो। तो इसने लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी को अपने पास रख लिया। दिस इज माय लोड बैलेंसर 20.221.40.118। इसने उसे उठा के अपने पास रख लिया, और ये दोनों पब्लिक आईपी हमारे हो गए अब खारिज। हम इसे अब हिट भी करते जाएंगे, हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो अब किसी भी पब्लिक किसी भी सर्वर से एसोसिएट ही नहीं है ना। ये देखो, ये दोनों घूमता रह जाएगा, लेकिन ये मेरे को रिस्पॉन्स देता रहेगा। सी VM2 आया, VM2 आया। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर ये तो अब थोड़ा दिक्कत हो गया, अब तो पब्लिक आईपी उसने आपने आपने तो उसका हटा दिया, अब मेरे को वहां पे कंटेंट चेंज करना है। अब कंटेंट चेंज कैसे करेंगे, अब ये बताओ। अब दोनों विंडोज मशीन का तो एक ही पब्लिक आईपी हो गया ना। अब मैं कैसे वहां पे कंटेंट चेंज करूंगा? मैं तो RDP कनेक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब बताओ कैसे करेंगे, तुम लोग बताओ। अरे कोई तो बताओ, कोई गेस भी सर तो वेब करो। सर्वर के अंदर जाके। अरे कैसे जाएंगे वेब सर्वर पे, जाएंगे कैसे बताओ तो मेरे को। वही तो मेरे को जानना है वेब सर्वर पे। हमने उसके पब्लिक आईपी। अच्छा, अगर क्लाइंट बोले कि आई डोंट वांट अ पब्लिक आईपी फॉर माय वर्चुअल मशीन, आई ओनली वांट अ पब्लिक आईपी फॉर माय लोड बैलेंसर, तब क्या करोगे? अरे मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो। तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया कि आई वांट टू कनेक्ट बैक टू माय VMs, और मेरे को वहां पे कंटेंट चेंज करना है। अब तुम बोलोगे तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी है, और वो भी तुम्हारे पास लोड बैलेंसर का है। तो तुम एक काम कर सकती हो, ये लोड बैलेंसर का पब्लिक आईपी को RDP कनेक्शन करने का ट्राई करो। ठीक है, इसको मैं एडिट करता हूँ। मैं बोलता हूँ अच्छा तुम्हारा भी पब्लिक आईपी ये हो गया है, तुम कनेक्ट करो तो अपने पास। तो मैं
देखता हूँ कनेक्ट करके क्या होता है। चलो, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। अब तो भाई ये दिक्कत हो गया ना, ये बोल दिया अनेबल टू कनेक्ट। फिर मैं बोला कि अरे यार तुम नहीं हो पा रहे हो तो तुम तो हो जाओ कम से कम, तुम्हारे पास भी ये पब्लिक आईपी है, दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम लोगों को क्लियर हो गया कि भाई अब तो मैं दोनों में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कैसे अब वहां के कंटेंट को चेंज करूंगा। ठीक है, अब मैं तुम लोग को उसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। क्लियर है सबको? पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। यस सर। यस ठीक सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि भाई हमें तो कंटेंट चेंज करना है, तुम तो वहां पे आरटीपी कनेक्शन उड़ा दिए वहां पे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने लोड बैलेंसर पे जाऊंगा। ठीक है, जो मैंने लोड बैलेंसर बनाया ना, मैं लोड बैलेंसर पे जाऊंगा और यहाँ पे देखोगे कि इनबाउंड नैट रूल है। ठीक है, ये इनबाउंड नैट रूल के मदद से, मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस इनबाउंड नैट रूल्स, आई कैन एंटर टू माई वर्चुअल मशीन्स वाया द पब्लिक आईपी ऑफ माई लोड बैलेंसर। with the help of inbound NAT rules I can, ये NAT rules का ये NAT rule का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं यार क्या है, कुछ नेटवर्किंग करके होगा। NAT rule फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं, हम एक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रूल ऐड कर रहे हैं तुम्हारे पास कि अगर हम एक आईपी पे आए तो हमें तुम कहाँ रिडायरेक्ट करोगे। तो पहले हम ऐड करते हैं, क्लिक ऑन ऐड। मैं बोल रहा हूं ये रहेगा मेरा माई VM1 नैट रूल। ठीक है, ये कहाँ रिडायरेक्ट करेगा? ये करेगा मेरे को अज्योर वर्चुअल मशीन पे। और किस वर्चुअल मशीन पे मेरे को जाना है? मेरे को जाना है माई विंडोज VM1 पे जाना है। तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर रूल बनाया। मैंने बोला फ्रंट एंड आईपी जो है तुम्हारे पास, जो तुम्हारे पास अपना पब्लिक आईपी है, तुम वो अपने पास रखना। ठीक है, फ्रंट एंड आईपी एड्रेस ये रहेगा, this 20, this is the load balancer public IP। फ्रंट एंड पोर्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रंट एंड पोर्ट क्या करता है ना, कि जब भी इस आईपी के फ्रंट एंड पोर्ट पे कुछ हिट जाएगा, इस आईपी के कुछ फ्रंट एंड पोर्ट फॉर ले लेते हैं हम लोग 8000 ले लेते हैं। ठीक है, तब हमें सर्विस, हमें तुम आरडीपी सर्विस देना और बैक एंड पोर्ट 80, नहीं नहीं बैक एंड पोर्ट 80 नहीं, आरडीपी का बैक एंड पोर्ट क्या होता है? हाँ 3389। Yes. 3389। ठीक है, और फ्रंट एंड पोर्ट हम बोल रहे हैं, हम जब भी 8000 से हिट करें फ्रंट एंड पे तब हमें आरडीपी देना, या फिर तुम मुझे कस्टम भी दे सकते हो। कस्टम पे वो बाय डिफॉल्ट सब कुछ अपने पास ले लेगा। ठीक है, ये मैं कस्टम लेके चलता हूँ, सर्विस कस्टम। ठीक है, टीसीपी होगा, आइडल टाइम आउट 4 मिनट का यहाँ भी है, मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अब इसके करने से क्या होगा वो देखते हैं। डिप्लॉयमेंट इनिशियलाइज हो गया है। चलो डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो देखो हमारे पास एक ना, मेरे VM1 के लिए एक नैट रूल है। हम बोले कि जब भी हम लोड बैलेंसर की पब्लिक आईपी विद फ्रंट एंड पोर्ट 8000 को क्लिक करेंगे, हिट करेंगे, तो हमें माई विंडोज VM1 को प्लीज मेरे को ओपन करने दे देना। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा एडिट करता हूँ। ठीक है, मैं बोला ये रहा मेरा पब्लिक आईपी ऑफ माई VM। मैं बोला किस पोर्ट से हिट करना है फ्रॉम फ्रंट एंड, क्या था पोर्ट नंबर क्या था? अरे 8000। Sir, 8000. Yes. ठीक है, 8000 जब भी मैं इस पब्लिक आईपी के इस पोर्ट पे अगर हिट करूं फ्रॉम माय फ्रंट एंड, तो मुझे आरडीपी कलेक्शन अलाउ करना। ठीक है, मैं इसे एडिट कर दिया, मैं इसे कनेक्ट करने चलता हूं। देखो अब हो गया। यस सर।
तो दिस इज द यूज ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रूल। तो अब ये मेरे को एंटर करने दे दिया। इन द सेम वे चलो मेरे को बताओ, मेरे को VM2 के लिए भी अब एक ऐड करना है, तो कौन करेगा बताओ? सर हाँ चलो बताओ। ट्राई नाम- सर, यस। हाँ बताओ क्या नाम रखें? माय VM2 NAT रूल, ठीक है चलो उसके बाद फ्रंट एंड IP एड्रेस देंगे। एक मिनट। हाँ ठीक है। टारगेट वर्चुअल मशीन कौन सा रहेगा मेरा अब? सर माय विंडोज VM2। एक मिनट। हाँ माई विंडोज 2। फिर बताओ नेटवर्क IP कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? IP कॉन्फ़िग रहेगा। फ्रंट एंड IP एड्रेस जो मेरा फ्रंट एंड का जो IP है लोड बैलेंसर का वो रहेगा। अब बताओ फ्रंट एंड पोर्ट क्या रहेगा? अब 8000 पे तो 50-50। हमने 8000 पे तो बोला कि वो तुम VM1 को रिराइट करोगे। अगर हम 8000 दे तो क्या होता है देखते हैं। तो ये क्या बोला? द फ्रंट एंड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट कॉम्बिनेशन यू एंटर्ड मैचेस अनदर रूल, कि ये अनदर रूल पे मैच कर रहा है तो आप फ्रंट एंड पोर्ट को चेंज करो। मैं बोला कि 8050 में लूंगा अपने पास। ठीक है, सर्विस टैग कस्टम देना, बैक एंड पोर्ट 3389। 89, यस सर। चलो परफेक्ट, मैं ऐड करता हूँ। ये सब चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है क्या तुम लोग को? हाँ सर, बट टाइम हाँ, टेकिंग बहुत है। टाइम टेकिंग बहुत है, बात सही है। ये काफी पेशेंस वाला चीज है। यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू लर्न ऑल द सर्विसेज एंड ऑल। ठीक है, अब इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इसका क्या था? फ्रंट एंड IP पोर्ट हमें कोलन देके सर, उससे फ्रंट एंड IP 8050। 8050। ठीक है, सेव कर देता हूँ। चलो कनेक्ट करता हूँ। चलो ये भी मेरे को कनेक्ट करने के लिए दे दिया। ठीक है, आया समझ में कि कैसे हम एक VM के पास जा सकते हैं अगर उसके पास पब्लिक IP नहीं है, तो वो लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है तो। ठीक है, दिस इज माय विंडोज VM2 एंड दिस इज माय विंडोज VM1। चलो एक चीज चेक करते हैं। पहले देख लेते हैं इसके इनहांस्ड सिक्योरिटी को बंद कर लेते हैं पहले। ठीक है, ऑफ कर दिया मैंने, ऑफ कर दिया। ठीक है, सेम यहाँ भी चलते हैं। इसे भी ऑफ कर देता हूँ। चलो दोनों जगह पे ऑफ हो गया हमारा, इनहैंस सिक्योरिटी तो ऑफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा इंटरनेट कनेक्शन दोनों VM पे अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे इसको लोड बैलेंसर पे ऐड करके रखा हुआ है। तो अगर क्लाइंट आके बोला कि मेरे को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो पहले चेक कर लेते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं है। दोनों जगह पे देख लेते हैं। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, आई विल जस्ट राइट डाउन। ये कौन सा VM है? माई विंडोज VM1 है। ठीक है, आई विल राइट डाउन google.com। चलो इसे लोड होने देते हैं। सेम यहाँ पे चलते हैं। ये माई विंडोज VM2 है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके करते हैं। नहीं यार, google.com। चलो यार, ये तो बोल रहा है कि भाई हमारे पास ये तो इंटरनेट कनेक्शन इस पे पास है ही नहीं। अब तुम्हारे पास एक यूज केस आएगा, तुम्हारे क्लाइंट ने बोला कि नहीं, आई वांट माय बोथ द VMs टू बी अप विद इंटरनेट कनेक्शन। तो तुम अब क्या करोगे?
तो अभी तक हमने सारे रूल्स को तो कॉन्फ़िगर किया है। हम मेरे पास एक लोड बैलेंसर का आउटबाउंड रूल भी है। अब लोड बैलेंसर का आउटबाउंड रूल भी है हमारे पास, हमने इसे अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो अब हम लोग इसे कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि हमारे लोड बैलेंसर के आईपी से भी कुछ बाहर जा सके, बिकॉज दीज अल्टीमेटली दीज आईपी आर ऑफ माय लोड बैलेंसर्स, राइट। हम अपने लोड बैलेंसर के आईपी के पोर्ट में देखे तब हम इस रिमोट कनेक्शन किए हुए हैं हमारे वर्चुअल मशीन्स पे। सो फॉर इनेबलिंग इंटरनेट I will just create a outbound rule. Outbound rule. It will be my outbound rule. ठीक है। Front end IP address would be this one. My backend pool, मेरे पास 2 इंस्टेंस है, ठीक है। इसको ये करूंगा और इसे डिफॉल्ट पे कर दूंगा, ठीक है, और इसे ऐड कर दूंगा। अब वेट करते हैं इसके डिप्लॉयमेंट का। सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे चेक करते रहेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर जैसे कि वो जब हम लोग आरडीपी से कनेक्ट करते हैं रिमोट डेस्कटॉप से, हाँ तो अगर सर मान लीजिए कोई भी जैसे अगर कोई भी हैक करना चाहता है तो यूजर नेम और पासवर्ड कोई कैसे भी हैक अगर कर लिया किसी हाँ। के, तब तो सर वो पूरा कंटेंट जाके बदल सकता है सर? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम एनएसजी पे जाके बताओगे कि भाई तुम आरडीपी कनेक्शन सबको मत देना, जो मैंने पहले क्लास में बताया था हाँ एनएसजी। हाँ। तो तुम जिस मशीन से जिस लोकल मशीन से तुम उस आरडीपी कनेक्शन को अलाउ करोगे, उसी मशीन को ही वो सिर्फ आरडीपी कनेक्शन देगा। अच्छा, तो सर लाइक सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सिर्फ अपने डेवलपर्स को अलाउ करते हैं ना, इसलिए। एग्जैक्टली। ओके सर। देखो और मैंने वहां पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे google.com यहाँ पे खुल गया, ये google.com यहाँ भी खुल गया, ठीक है। अब दोनों जगह पे हमारे पास कंटेंट्स, तो अब हम यहाँ पे कुछ डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो चलो अपने लोड बैलेंसर पे एक बढ़िया सा कोई सुंदर सा कंटेंट डाउनलोड कर लेते हैं। तो करते हैं डाउनलोड फ्री वेबसाइट्स। अरे यार चलो ये कर लेते हैं, योगास्ट वाला डाउनलोड कर लेते हैं। सेव एज, सेव, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलो डाउनलोड हो गया दोनों जगह पे। अब इसके हम कंटेंट को कॉपी करते हैं पूरा। कमांड ए, कमांड सी, कहाँ जाना था, दिस पीसी, विंडोज सी, inet pub, www root, इसे हटा देते हैं पहले। डिलीट, और उसे पेस्ट कर देते हैं। सेम इंक भी कर लेते हैं। इनको तो डाउनलोड्स ओपन करता हूँ मैं, सारे कंटेंट को कॉपी करता हूँ। कमांड ए, कमांड सी, मैं कमांड बोलता हूँ, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि भाई तो कंट्रोल होता है, मैं कमांड कर रहा हूँ। इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, पेस्ट। चलो अब हमारे लोड बैलेंसर को देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। सब लोग लोड बैलेंसर को हिट करो तो फिर से एक बार फाइनल टाइम हिट करो। एवरीवन शुड गेट एवरीथिंग। हेलो, हो तुम लोग? यस सर। हाँ सर है। क्या हिट कर लिया लोड बैलेंसर को? सब कुछ कॉन्फ़िगर हो गया Yes, सही से? सर यही वेबसाइट आ रहा है सर। ठीक है चलो, तो हम लोग ऑल डन है। हमारे लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर हो गए, दैट टू अ स्टैंडर्ड वन। हमने क्या क्या चीज चेंज किया था, वो सब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे एक बार बढ़िया से। एक बार बैठ के पहले बढ़िया से रिकॉर्डिंग देखना अपने लैब सेशंस में, फिर उसके बाद करने बैठना। तुम्हारे पास अभी पूरा फ्री टाइम है, यू यूटिलाइज दिस टाइम टू द फुलेस्ट, ठीक है। आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग राइट नाउ, जस्ट